Good evening, everyone. On behalf of the Ahmedabad Management Association, I extended a warm, very welcome to all of you today's insightful session, the first in our cyber safety series titled Over and Above Do's and Don'ts How to Be Safe from Cyber Frauds. In today's digital age, cybersecurity is no longer just a technical necessity, it's a personal and professional priority. With cyber frauds becoming increasingly sophisticated, the need for proactive awareness and practical understanding have never been more critical. To help us navigate this complex and evolving landscape, we are honored to have with us a truly multifaceted personality, Mr. Rutvij Vora. Mr. Vora is not only a cybersecurity expert but also an accomplished entrepreneur with a deep passion for business and technology. He co founded MyClass Campus, an innovative ERP platform for educational institutions, which was successfully acquired by TechMint, a proud alumni of NFSU and an MTech in cybersecurity. Mr. Vora brings a unique blend of technical expertise and entrepreneurial success and real world experience in cybercrime prevention and digital forensics. His unique blend of startup leadership, strategic insight, and practical cybersecurity expertise makes him the perfect speaker for this session. We are grateful to have you, Mr. Vora. On behalf of AMA and all attendees, I warmly welcome you and take this opportunity to felicitate you for your outstanding contribution. And now, without further delay, let us move into the core of today's program. Mr. Vora will guide us through the real world threat and lesser known tactics for cyber frauds, and more importantly, how we can stay vigilant and safe. From beyond the textbook, do's and don'ts, this session promises to give us a practical lens into what cyber safety truly means today. Please join me in welcoming Mr. Vora to take us forward. A warm good evening to all. કેમ છો બધા? How is everyone? Great. I'll try to keep this session as light as possible because this topic is too technical. And just before I start, would like to understand from you which language everyone is comfortable in: Hindi, Gujarati, English. Oh, yeah. So I'll use a hybrid language. Great, great, perfect, perfect. So, as everyone can see, over and above do's and don'ts. Can anyone guess why the topic is like that? Over and above do's and don'ts. Okay. Any? Yes. So, we are living in a country where not just I am the cyber security expert, but everyone is cyber security expert, right? And every one of us knows क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. चलो एक छोटा सा सर्वे करते हैं बिफोर वी गो फॉरवर्ड इन द प्रेजेंटेशन. कितने लोगों को यहाँ पे पता है कि अननोन लिंक्स पे क्लिक नहीं करना चाहिए? ओ माय गॉड, वो नहीं पता है. यस, ओके, પ્લીઝ. એ કઈ રીતે ખબર પડે? કરેક્ટ, કરેક્ટ. હાउ वी आइडेंटिफाई द ऑथेंटिसिटी? करेक्ट, करेक्ट. कितने लोगों को पता है कि ओटीपी किसी को नहीं देना चाहिए? सबको पता है. ओके, नाउ वन नेक्स्ट वंडरफुल क्वेश्चन. आपके फैमिली, फ्रेंड्स, नियर बाय, लव्ड वन में कितने लोगों के साथ ये सब पता होने के बावजूद फ्रॉड हो चुके हैं? ओ माय गॉड. ओके, सो दैट मीन्स कि डूज एंड डोंट्स वर्क नहीं कर रहे हैं, राइट? एंड दैट्स व्हाई टुडेज टॉपिक इज ओवर एंड अबव डूज एंड डोंट्स. So today we will cover these
points. The presentation is only for your reference and my reference. You can just listen to me. I'll give you too many wonderful examples and tricks today. So, cybersecurity is a passion for me, and I have been involved into multiple investigation cases till now. By qualification, also, I did my master's in cybersecurity from NFSU, National Forensic Science University. By profession, I am an entrepreneur, but cybersecurity is something I am very fascinated about. तो ये एक ऐसी डोमेन है कि जिसमें मैं दिन रात कुछ ना कुछ करता रहता हूँ. सो वॉट हेल्प वॉट हेल्प्स मी, जो मैं ये सारी चीज़ें करता हूँ, आई कम टू अ कंक्लूजन कि जितने भी फ्रॉड्स होते हैं इंडिविजुअल के साथ, वो सारे फ्रॉड इसकी वजह से होते हैं. एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड कंक्लूजन आई कम टू नो. अगर हमें फ्रॉड से बचना है तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो सारी चीज़ें तो ठीक है, पता जितनी ज़्यादा रहेगी उतना अच्छा है. वैसे भी हम अप्लाई तो कर नहीं पाते उन सारी चीज़ों को. बट हमारा फ़ोन स्ट्रिक्टली कन्फिग्यूर्ड होना चाहिए उन सारे थ्रेट्स से हमें बचाने के लिए. So if you can see the sessions here, right? Second topic is how your mobile OS can lead you towards cyber fraud. आपकी फ़ोन की OS, कुछ लोगों के पास एंड्रॉयड फ़ोन होंगे तो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, कुछ भी वर्जन होगा. ओप्पो वीवो का होगा तो कुछ अलग होगा, ऑक्सीजन OS होगा, बट बेसिकली इन एंड्रॉयड. कुछ लोगों के पास आईफोन होंगे तो आईफोन की OS होगी. ओएस की ऐसी कैसी सेटिंग्स हैं कि जिनकी वजह से फ्रॉड होते हैं आपके साथ. थर्ड थर्ड पॉइंट इज योर एप्लीकेशन परमिशन एंड सेटिंग. फोर्थ इज फाइनेंशियल एंड बैंकिंग फ्रॉड. सो हमारे फ़ोन में जितनी भी ऐप हम यूज़ करते हैं उसको मैंने यहाँ पे कैटेगराइज किया हुआ है, इफ़ यू कैन जस्ट सी. सो ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल कैटेगराइजेशन, परमिशन लेवल कैटेगराइजेशन, बैंकिंग एप्स लेवल कैटेगराइजेशन, देन सोशल मीडिया एप्स. अभी तो वॉर की सीज़न थी, उसमें तो सोशल मीडिया पे सब लोग 24/7 थे. तो सोशल मीडिया की जितनी ऐप है उनसे फ्रॉड कैसे कैसे हो सकते हैं. एंड देन अदर टेक्निक्स. सो एक्चुअली देर आर अराउंड 150 प्लस सच यूज केसेस जो अगर सही तरीके से हमारे फ़ोन में कन्फिगर्ड ना किए गए हो तो वी कैन बिकम अ विक्टिम. बट कंसिडरिंग टूडेज टाइम लिमिटेशन ऑफ 1 hour, आई विल बी एबल टू शोकेस यू सम ऑफ देम. एंड इफ यू हैव देन more interest in learning above and over those use cases, then we can connect personally after this session or maybe sometimes in this week or later. So let's go ahead. How many of you aware about this? Okay, this is one type of fraud, digital arrest. कितने लोगों को पता है डिजिटल अरेस्ट कैसे होता है? Can anyone explain? Anyone, please. Okay, yes. ड्रग्स मिले हैं. यस, करेक्ट. और फिर वो हमसे पैसे ट्रांसफ़र करवाते हैं. ऐसे दूसरे कौन से फ्रॉड्स हुए हैं आपके साथ या आपके फैमिली के साथ? जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड, ताकि इस प्रेजेंटेशन में अगर आगे ऐसा कुछ पॉइंट आए तो आई कैन रिलेट दैट. यस, क्या हुआ था? वन बाय वन, जस्ट 1 minute. ऐप डाउनलोड करवाई? हाँ. ओके.
तो भी ले लिया, इसका आंसर है इसके अंदर। ठीक है, यहाँ से ठीक है, विल कंसिडर इन Q&A सेशन। फ़ोन चोरी होता है तो भी चला जाता है, ठीक है, ये पॉइंट भी हम कवर करने वाले हैं। यस, ओके। हम्म। परफेक्ट। यस सर, आप कुछ बोल रहे थे? हाँ, कनेक्शन काट देंगे। OTP दे दो। ठीक है, एनीवन? यस। हम्म। हम्म। ठीक है, एनीवन एल्स वुड लाइक टू शेयर? कूल। तो जितने भी यूज़ केस हमने सुने यहाँ पे, प्लीज़। AI जनरेटेड वॉइस, यस, हमने देखा भी है, वो सही है। हाँ, मतलब आपके अंकल का वॉइस, आंटी का वॉइस, भाई जो कोई दूर रहता है उसका वॉइस, ऐसे वॉइस में आपको कॉल आएंगे और वो बोलेंगे, आपको लगेगा कि उसी ने कॉल किया हुआ है, एंड देन आप फंस जाओगे। कूल। सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो रही है, राइट नाउ। देखिए, यू ऑल आर फ्रॉम डाइवर्स एज ग्रुप। लेट्स कंसिडर एग्जाम्पल ऑफ माई फादर। मैं मेरे फादर को कितना भी समझाने जाऊं, कुछ चीज़ें वो नहीं समझ पाएंगे तो नहीं समझ पाएंगे, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, राइट। इतनी टेक्निकल चीज़ें होती है कि जिसकी वजह से देन द मोर नॉलेज यू गेट द मोर कन्फ्यूज यू बिकम। अब लिंक क्लिक करनी है कि नहीं करनी है, नहीं करनी वो पता चल गया, अब कौन सी करनी है कौन सी नहीं करनी है, कन्फ्यूजन आ गया। OTP नहीं देना है, पता चल गया, अब कौन सा देना है कौन सा नहीं देना है, किसको देना है किसको नहीं देना है, कन्फ्यूजन हो गया। व्हाट इफ हम हमारे मोबाइल फ़ोन में ही ऐसा करें कि अगर आपसे कोई फ्रॉड करना चाहे, आपको पता ना हो तो भी फ्रॉड हो ही ना पाए, तो कैसा? एंड दैट इज द टॉपिक फॉर टुडे। यस, एंड दैट यू ऑल कैन हैव फ्रॉम योर मोबाइल सेटिंग। और ऐसे डिफरेंट कैटेगरी के कुछ कुछ सैम्पल सेटिंग्स मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा, ताकि आपका दिमाग उस डायरेक्शन में खुलेगा कि हाँ, मोबाइल से इस तरीके से भी साइबर फ्रॉड्स को हैंडल किया जा सकता है, राइट। इसके ऊपर मेरे पास एक वीडियो है, वो मैं बाद में आपको समझाऊंगा। लेट्स गो टू द फर्स्ट पॉइंट, हाउ योर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कैन लीड टूवर्ड्स अ साइबर फ्रॉड। जैसे मैंने बताया, टाइम का लिमिटेशन है तो मैं कुछ ही यहाँ पे एग्जांपल बता पाऊंगा। एंड हम सब के पास इतने डाइवर्सिफाइड मोबाइल हैं कि मैंने जो स्टेप्स यहाँ पे लिखे हैं वो स्टेप शायद आपके फ़ोन में उस तरीके से ना भी हो, कोई अलग तरीके से भी ये सेटिंग हो सकता है, बट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द लॉजिक। इफ़ यू वॉन्ट आई कैन शेयर दिस प्रेजेंटेशन लेटर ऑन थ्रू AMA टू एवरीवन, ताकि आप घर पे वो सारी चीज़ें चेक कर पाओगे। सो डोंट गो फॉर हरी टू चेक राइट नाउ इन योर फोन, जस्ट स्टे फोकस्ड, बाद में आई विल शेयर, ठीक है। सो बेसिकली सिक्योर सेटिंग प्लस अवेयरनेस, दैट इज अ स्ट्रॉन्ग डिफेंस, दैट्स व्हाट वी बिलीव। सो द फर्स्ट इज, आपके सेटिंग के अंदर, एप्स के अंदर, स्पेशल ऐप एक्सेस के अंदर इंस्टॉल अननोन एप्स, ये ऐसा एक सेटिंग होता है। ये बेसिकली सबके फ़ोन में डिसेबल्ड होना चाहिए।
आप अपने फैमिली में भी जितने फ़ोन हैं वो सारे फ़ोन में भी अगर ये सेटिंग डिसेबल कर दोगे तो इससे कौन से फ्रॉड नहीं होंगे, अगर आप खुद भी अपने साथ फ्रॉड करना चाहोगे तो भी नहीं होंगे। कौन सा? कि आपको इंडसइंड बैंक का एक एसएमएस आया कि आपका क्रेडिट कार्ड ब्लॉक हो चुका है, अभी केवाईसी वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे क्लिक करें, और वो क्लिक करने से एक ऐप डाउनलोड होती है। फिर उस ऐप में आप अपना इंटरनेट बैंकिंग का आईडी पासवर्ड डालते हैं, क्रेडिट या डेबिट कार्ड का सीवीवी और पिन और वो सारी डिटेल डालते हैं, और आपको ऐसा एक ग्रीन टिक आता है कि थैंक्स वी हैव अनब्लॉक्ड योर डेबिट कार्ड, और दूसरी मिनट में पैसे निकल जाते हैं। अब इस पे मैं आपको कितना भी समझाऊं कि लिंक पे क्लिक करो मत करो, वोट एवर वोट एवर वोट एवर, सेटिंग इज दिस। आपके फ़ोन में अननोन सोर्स से, मतलब कि अगर एंड्रॉयड है तो प्ले स्टोर, एप्पल है तो ऐप स्टोर, उसके अलावा कहीं से ऐप इंस्टॉल ही नहीं होनी चाहिए। अब खुद के साथ भी फ्रॉड करो खुद ही तो भी नहीं होगा इस तरीके का फ्रॉड। रूट कॉज को हम फिक्स कर रहे हैं। सो दैट इज फर्स्ट थिंग, राइट। सेकेंड, सेटिंग के अंदर सिमिलरली इंस्टॉल अननोन एप्स, ये मतलब दो डिफरेंट चीज़ें हैं। पहला है इंस्टॉल अननोन सर्विसेज, दूसरा है इंस्टॉल अननोन एप्स। ये दो चीज़ें हमें करनी है। थर्ड इज परमिशन मैनेजर करके होता है हमारी प्राइवेसी सेटिंग के अंदर। वहाँ पे आप ये चेक कर सकते हो कि कितनी ऐप्स को एसएमएस रीड करने की परमिशन है, कितनी ऐप्स को कैमरा की परमिशन है, कितनी ऐप्स को लोकेशन की है, और कितनी ऐप्स को माइक्रोफोन की है, वगैरह वगैरह। अब एक दिन रात को इंस्टाग्राम ना करके 1 घंटा ये करना, इसमें आपको पता चलेगा कि आपने जो साईं बाबा की ऐप डाउनलोड करी थी ना, उसको कॉन्टेक्ट रीड करने की परमिशन है। अब साईं बाबा को आपके कॉन्टेक्ट से क्या काम? फिर भी अगर वो कॉन्टेक्ट रीड कर रहा है, दैट मीन्स कि वो आपके कॉन्टेक्ट को फेच करके कहीं पे भेज रहा है। मान लो आपने कोई गेम डाउनलोड करी जो गेम ऑफलाइन में चलती है, उस गेम के पास लोकेशन का सेटिंग है, उस गेम को लोकेशन का क्या काम? सो सिमिलरली प्राइवेसी के अंदर अगर आप 1 घंटा बैठ के आज ही अपने फ़ोन में और रिलेटिव्स के फ़ोन में ये करेंगे तो बहुत सारे अननेसेसरी परमिशंस दूर हो जाएंगे। अब इसकी वजह से कौन से फ्रॉड अटकेंगे? तो पीछे भाई बैठे हैं, उन्होंने अभी बताया कि यार मैंने तो ओटीपी दिया ही नहीं, फिर भी यार कुछ हो गया। हाँ, तो एसएमएस रीड का परमिशन होगा। तुमने कोई गेम डाउनलोड करी होगी, कुछ ऐप डाउनलोड करी होगी, गानों की ऐप या कोई लिटरेचर की ऐप, योगा की ऐप, मेडिटेशन की ऐप, हमें थोड़ी पता है कौन सी सही है कौन सी गलत है। उसको एसएमएस रीड का परमिशन होगा, वो ऑटो रीड कर रहे हैं तुम्हारे मैसेज। बैंक का ओटीपी आया, तुम्हें देने की जरूरत ही नहीं है, मिल गया उसको। जनरली ऐसा नहीं होता, बिकॉज नाउ प्ले स्टोर इज बिकमिंग स्ट्रिक्ट कि कोई भी डेवलपर अपनी ऐप अपलोड कर रहा है तो क्या परमिशन कब मांग रहा है। बट नॉर्मली क्या हो जाता है कि कभी मिक्स सिचुएशन होती है। जैसे आपने ऑथेंटिकेट सोर्स से प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करी, अब बाय डिफ़ॉल्ट उसके पास एसएमएस रीड का परमिशन नहीं है। अब उसकी कोई एक ऐसी फंक्शनैलिटी है कि जो फंक्शनैलिटी को यूज़ करने के लिए एसएमएस रीड की परमिशन चाहिए। आपको पता है आपके पास 3 ऑप्शन आते हैं। अचानक कहीं पे क्लिक करोगे चालू ऐप पे तो कि डिनाई, ओनली वाइल यूजिंग दिस ऐप, एंड गिव परमानेंटली। इसमें हम लोग क्या कर देते हैं, अरे यार छोड़ो ना, झिक झिक बार बार क्या ये मांगेंगे परमानेंट। अब उसको एसएमएस रीड चाहिए था सिर्फ वो फीचर यूज करने के लिए, ओनली वाइल यूजिंग दिस ऐप, बट आपने क्या दे दिया? तो आप ही ने बोला है कि भाई पढ़ो मेरे मैसेज, तो पढ़ेंगे। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो यहाँ पे जो स्टेप लिखे हैं सेटिंग के अंदर, प्राइवेसी के अंदर, परमिशन मैनेजर में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे जैसे आपको एसएमएस रीड का परमिशन हटाना है तो एसएमएस मतलब रीड पे क्लिक करेंगे तो पूरी सारी लिस्ट आ जाएगी, उसमें से जो नहीं चाहिए वो आप अनटिक कर देना तो निकल जाएगी। सो इट जस्ट अ मैटर ऑफ टिक एंड अनटिक। क्लियर? चौथा, एक एक्सेसिबिलिटी का एक सेटिंग होता है हम सबके फ़ोन में, ये काफ़ी लोगों को नहीं पता।
इसके अंदर इंस्टॉल्ड सर्विसेज करके एक ऑप्शन होता है। कुछ कुछ नए जो फ़ोन हैं उनके अंदर कोई अलग तरीके से भी ये सेटिंग आता है। ओनली इनेबल सर्विसेज फ्रॉम ट्रस्टेड ऐप, मेलेशियस ऐप्स कैन मिसयूज दिस टू कंट्रोल योर डिवाइस। अब हमारे फ़ोन में बहुत सारी सर्विसेज चल रही होती है, तो जैसे हम परमिशन में ट्रस्टेड ऐप्स को परमिशन दे रहे हैं, वैसे हम ट्रस्टेड सर्विसेज को भी यहाँ से परमिशन अलाउ या तो डिसअलाउ कर सकते हैं। सो दिस इज़ वन मोर थिंग। ऐसे तो बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम रिलेटेड सेटिंग्स हैं जो हमें करने चाहिए, बट ये कुछ ऐसे हैं कि जो काफ़ी यूज़ हो रहे हैं आजकल फ्रॉड्स के अंदर, तो मैंने उनको हाईलाइट किया हुआ है। नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स नेक्स्ट कैटेगरी, साइबर फ्रॉड वाया एप्लीकेशन परमिशन एंड सेटिंग। पहले हमने जो देखा दैट वाज रिलेटेड टू योर ओएस। अब हम जो देखेंगे वो है पर्टिकुलर एप्लीकेशन के परमिशन। अब ये एक है सेटिंग के अंदर, एप्स के अंदर, स्पेशल एक्सेस के अंदर डिस्प्ले ओवर अदर ऐप। मतलब कि आपके बैकग्राउंड में कुछ भी खुला हो, वो पर्टिकुलर ऐप उसके ऊपर ओवरले हो जाएगी, ऐसी परमिशन आती है। ये जनरली आपको डिसअलाउ रखना चाहिए, वरना गलती से भी कोई फेक एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गई, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेलवेयर ऐप मिमिक योर बैंकिंग लॉगिन स्क्रीन कैप्चरिंग क्रेडेंशियल एज यू एंटर देम। मतलब आपने कुछ और खोल के रखा है और उसके ऊपर किसी ने फेक आईडीएफसी बैंक का इंटरनेट बैंकिंग ऐप बना दिया है या इंडसइंड बैंक का बना दिया है, और उसके अंदर आपने गलती से क्रेडेंशियल्स डाल दिए। सो दिस सेटिंग पर्टिकुलरली शुड बी ऑफ, ताकि कोई इस तरीके से अगर फ्रॉड करना चाहे तो भी आपके साथ ना हो। नेक्स्ट इज सेटिंग के अंदर, बैटरी के अंदर ऐप लॉन्च बैकग्राउंड एक्टिविटी। कितनी ऐप बैकग्राउंड में आपके फ़ोन में चालू की चालू रह सकती है, ये यहाँ से तय होता है। इफ़ यू गो टू दिस पर्टिकुलर सेटिंग, और अगर आपको यहाँ पे कोई ऐसी एप्लीकेशन मिले कि जो बैकग्राउंड में चल रही है, तो आपको डाउट करना चाहिए उसके ऊपर, बिकॉज अ स्पाईवेयर कैन रन कंटिन्यूसली। और अगर स्पाईवेयर रन हो रहा है गलती से आपके फ़ोन में, इधर उधर से कहीं से आ गया, तो या तो वो आपको आपकी स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकता है, या तो वो आप नंबर पैड पे जो डायल करते हैं मोबाइल नंबर्स, वो कैप्चर कर सकता है, या तो आपके कीबोर्ड के की स्ट्रोक्स कैप्चर कर सकता है। एनीथिंग दैट स्पाईवेयर कैन डू। मैं आपको एक रिसेंटली मेरा इन्वेस्टिगेशन केस है वो सुनाता हूँ। ये राजकोट के अंदर बना है, जो राजकोट के साइबर सेल के अंदर रिपोर्ट भी हुआ है। और एक ऐसा वाक्य हुआ कि एक भाई, ये थोड़े साल पहले का है, तो उस टाइम पे हम टॉक टाइम करवाते थे अपने फ़ोन में, राइट, और वो बैलेंस फिर कटता था हम किसी को फ़ोन करें तो एक पर्सन के टॉक टाइम में से रोज़ थोड़े थोड़े रुपए कट होने शुरू हो गए। अब पहले तो किसी को पता नहीं चला, क्योंकि रोज़ 2-4 रुपए बैलेंस कम होगा तो किसी के ध्यान में नहीं आएगा। बट एक दिन उनको पता चला कि यार मैं कॉल को किसी को कर नहीं रहा हूँ, ये कहाँ से बैलेंस मेरा जा रहा है। फिर ये जब केस सोल्व हुआ तब पता चला कि वो महोदय ने एक गेम डाउनलोड करी थी। वो गेम चाइनीज़ सर्वर से कनेक्ट हो रही थी, और जब वो इंस्टॉल नेक्स्ट 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 फिनिश, उसमें जो वो नेक्स्ट 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 करके आप सारी परमिशन उधार होके दे रहे हैं हम लोग, उसमें बैकग्राउंड में रन होने का परमिशन मांग लिया था, जो सेटिंग हम अभी देख रहे हैं। अब मेरा कहना यह है कि हम इन सारी चीज़ों को आते तो रोक नहीं सकते, बट एग्जीक्यूट होते रोक सकते हैं कि हम पे वो असर ना करे। तो इस फ़ोन के अंदर यूएसएसडी कोड कैप्चर बैकग्राउंड में करने की, रन करने की, और इन्फॉर्मेशन कैप्चर करने की स्क्रिप्टिंग करी हुई थी गेम के अंदर। अब यूएसएसडी कोड मतलब क्या पता है किसी को? *#06#, जो स्टार से शुरू होता है, हैश से ख़त्म होता है। दिस इज़ नॉट अ मोबाइल नंबर, और आपके फ़ोन का रेडिएशन लेवल बताता है, आपका IMEI कोड दिखाता है, ऐसी सारी चीज़ें आपके फ़ोन में डायल पैड पे डायल करने से आता है, राइट। इसको कहते हैं यूएसएसडी कोड। नाउ दिस ऐप वाज रनिंग इन द बैकग्राउंड, रनिंग द यूएसएसडी कोड, वो भी परमिशन थी उसके पास। तो यूएसएसडी कोड रन करके उसने आपका IMEI नंबर और सिम नंबर ले लिया। सिम नंबर मतलब कौन सा? 10 डिजिट मोबाइल नंबर नहीं, 16 डिजिट नंबर,
जो सिम कार्ड के पीछे लिखा हुआ आता है, वो ले लिया। अब एक चाइनीज सर्वर था, वहाँ पे एक पूरा डेटाबेस बन रहा था, ऐसे जितने लोग कि जो ये गेम खेल रहे हैं उन सब के फ़ोन, उनका IMEI नंबर, सिम नंबर, उनकी पेयर बन रही थी। और फिर हैकर्स के पास ऐसा एक कॉलिंग सॉफ्टवेयर होता है कि जिसकी मदद से वो लोग ऐसा कॉम्बिनेशन मिल जाए कि ये मोबाइल नंबर, उसका है IMEI नंबर और उसका है सिम नंबर, तो वो तीन चीज़ें एक साथ डाल के कॉम्बिनेशन अनलॉक करके उसके फ़ोन में से फ़ोन कर सकते हैं। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे इन सर का मेरे पास तीनों डिटेल आ गया, तो मैं इनके फ़ोन में से फ़ोन कर सकता हूँ। रिमोट एक्सेस की तरह वो काम करेगा। तो इससे क्या होगा कि जब भी वो राजकोट में भाई रात को सोते थे, तो रात को 1:30 बजे के आजू बाजू एक छोटे से थोड़े से टाइम के लिए स्क्रीन ब्लिंक होती थी। अब हम तो सो गए हैं तो हमें तो पता नहीं है, हमारे फ़ोन ऐसे साइड में रखा हुआ है टेबल पे। तो तब वो USSD कोड रन होता था और काफ़ी बार उनकी लॉटरी लग गई थी। तो उनके फ़ोन में से अफ्रीका के, साउथ अफ्रीका के कोई गांव में कोई इंटरनेशनल कॉल लगा रहा था, और उसमें जो बैलेंस कट हो रहा था उसमें से वो हैकर अपना पार्ट ले रहा था। अब ये पूरी सिस्टम डूज एंड डोंट से हैंडल नहीं करी जा सकती, समझा नहीं सकते कि तुम ये मत करो, वो मत करो, फलाना ढिकना। अगर तुम्हारे फ़ोन में सेटिंग ही बंद है तो भले करो डाउनलोड, मेलवेयर डाउनलोड करो, रन ही नहीं होगा। सो दैट इज दैट सेटिंग। थर्ड, सिम कार्ड लॉक। अब यहाँ से आई थिंक सर आपने बताया था कि फ़ोन जब चोरी हो जाता है तब पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो चोरी होता है तब क्या होता है? तो बेसिकली फ़ोन और सिम कार्ड दोनों किसी के उसमें आ गया। अब फ़ोन तो अनलॉक कर सकते हैं, फैक्ट्री रीसेट मारो तो। अब सिम कार्ड किसी के हाथ में आ गया तो सिम कार्ड दूसरे फ़ोन पे डाल के आपका जीपे वहाँ लॉगिन कर दिया, आपका OTP वहाँ आ जाएगा। और आप जब तक सिम कार्ड डिस्ट्रॉय करो BSNL में जाके या आइडिया वोडाफोन में जाके डीएक्टिवेट करो, उसके पहले किसी ने ये प्रोसेस कर दी तो हो जाएगा फ्रॉड। तो उसके लिए सेटिंग है ये, अ थीफ स्वैप्स योर सिम इनटू अनदर डिवाइस एंड यूज इट टू रीसेट योर बैंक अकाउंट एंड सोशल मीडिया पासवर्ड। तो आपको अपने फ़ोन में सिम कार्ड लॉक रखना है। मतलब कि अगर अभी इस ये फ़ोन का जो IMEI है उसके साथ ये सिम बाइंड हो गया, अब अगर वो सिम और कोई फ़ोन और कोई IMEI डिवाइस में जाएगा, चलेगा ही नहीं, भले फ़ोन चोरी हो जाए। ओके। सिम कार्ड लॉक का एक ऑप्शन होता है सेटिंग्स के अंदर, वो इनेबल करना होता है। कोई क्वेश्चन पूछ रहा था? You can connect to me, right? नहीं नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, मैं आई विल हेल्प। ऐसी तो टोटल 150 प्लस सेटिंग्स की पूरी चेकलिस्ट है, एंड आई हैव सम रिसोर्सेज ऑल्सो कि जिसमें आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना अगर फ़ोन दे दोगे तो वो आपके सामने बैठ के आप देख पाओगे कि क्या हो रहा है, उस तरीके से आपके फ़ोन में चीज़ें सही कर देंगे। दैट ऑल्सो कैन बी डन, बट अभी फोकस ऑन लर्निंग कि क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे रुक सकती है, राइट? हाँ, ध्यान रखना पड़ेगा। यस, यस, हाँ जी। हो सकता है। अभी रिसेंटली मैंने एक सिम्स हॉस्पिटल के एक डॉक्टर का केस आया था। अभी उनके साथ ऐसा हुआ था कि उन्होंने एकदम हरी में थे। तो अब देखो, हैकर को है ना ये भी पता है कि आप कौन से टाइम पे जल्दी में रहोगे, कौन से टाइम पे आप फ्री रहोगे। तो वो आपके साथ फ्रॉड भी उसी टाइम पे करते हैं कि जब आप हड़बड़ी में हो। तो वो भी दिन दिन के जिन टाइम में हड़बड़ी में थे उस टाइम पे इंडसइंड बैंक का मैसेज आया, बैंक का वो ऐप डाउनलोड हो गया, SMS रीड का परमिशन आ गया। अब उन्होंने पासवर्ड रीसेट करने के लिए अपना बैंक का डिटेल डाला, डेबिट कार्ड का। अब वो तो हो ही सकता है, आप भले इंटरनेट बैंकिंग यूज़ ना करो, डेबिट कार्ड तो हो ही सकता है आपके पास। वो डिटेल जब डाला तो बैंक के क्रेडेंशियल उसके पास चले गए, फिर उसने NEFT ट्रांजेक्शन परफॉर्म किया। NEFT ट्रांजेक्शन के लिए क्या चाहिए? OTP। OTP के लिए क्या चाहिए? SMS रीड की परमिशन।
एंटर योर, हाँ हाँ, वो पूरी पूरी प्रोसेस करनी पड़ेगी, पिन पिन आपका डालना पड़ेगा उस पर। हाँ, तो देखिए मैं आपको ये रेकमेंड करता हूँ कि ये जो सारे स्टेप है ना, ये पीपीटी ले लेना, और ये हर एक स्टेप के ऊपर यूट्यूब वीडियोस भी अवेलेबल हैं कि ये सारी चीज़ें कैसे होती है, अगर आपको खुद से करना है तो। मेरा आज का काम ये है कि मैं आपको क्या ध्यान रखना है वो बताऊं, राइट। हाँ, उसके लिए हम आराम से बात भी कर सकते हैं, या तो उसके लिए यूट्यूब वीडियोस भी अवेलेबल हैं। ये कोई ऐसा ज्ञान नहीं है कि जो वर्ल्ड में अवेलेबल नहीं है, मैंने जस्ट क्यूरेट किया हुआ है, राइट। सो हाँ, एक एक पॉइंट के आप अपने यूट्यूब में सर्च करोगे कि मेरा सिम कार्ड लॉक और अनलॉक मैं कैसे करूँ, तो देर आर वीडियोस। बट आपको, मेरा पर्पज़ ये है कि आपको पता होना चाहिए कि ये करना है मुझे। ओके, कौन से वीडियो? वो भी फेक हो सकते हैं, कलयुग है सर, कलयुग में तो कुछ भी हो सकता है। थोड़ा उसका देखो तरीका, मैं खुद भी तो इंसान ही हूँ, तो मैं भी यही तरीका, हाँ मैं ऐसा तरीका यूज़ करता हूँ कि मैं जनरली कमेंट देखता हूँ, उसके फॉलोअर्स देखता हूँ, उसकी ऑथेंटिसिटी में लाइक्स वगैरह क्या है वो देखता हूँ, उसके हैंडल के पीछे और मुझे इन्फॉर्मेशन मिले। जैसे यूट्यूब चैनल में क्या होता है कि एट द रेट करके कुछ लिखा हुआ होता है, तो उसका फिर इंस्टाग्राम भी है कि नहीं, उसका कोई वेबसाइट भी है कि नहीं, वेबसाइट पे ब्लॉग, थोड़ा रिसर्च करके पता चलता है कि भाई ये जेन्युइन बंदा है कि नहीं है। बट फिर भी 1% चांस तो है ही सबके साथ, मेरे साथ भी है। आई डोंट थिंक सो कि उनको भी ऐसे नॉलेज होंगे कि, मतलब कुछ कुछ चीज़ के हो सकते हैं उन्होंने कभी फेस किया हो तो, बट नॉट श्योर। यस यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। नहीं, वो अच्छा किया। देखो, कॉमन सेंस और अवेयरनेस नॉर्मल जगह पे तो काम आती है, उसके ऊपर अगर आप ये ऐसी सारी चीज़ें करेंगे तो जहाँ से आपसे चूक हो रही है वहाँ भी आप बच जाओगे। जैसे 100 टाइम मेरे साथ किसी ने फ्रॉड करने का ट्राई किया, उसमें से 90 टाइम तो मैं बच गया, मैंने फ़ोन नहीं उठाया, मैंने ओटीपी नहीं दिया, ये वो सब मैंने किया। 10 टाइम्स जब मैं फिसल गया तब मेरे सेटिंग ने मुझे बचा लिया। वो वाला फंडा है बेसिकली। तो बाकी आपने जो बोला वो 100% हो सकता है। आप सब लोगों ने बीच में वो ऐसी ऐप्स, जब एआई चैट जीपीटी नया नया आया था तो देखी थी आप सब लोगों ने, जहाँ पे कोई भी सॉन्ग आप सिलेक्ट करो तो अरिजीत सिंह की वॉइस में वो सॉन्ग कैसा लगेगा, ऐसा वो बना के बताते थे। एआई ऐप। अब वो अगर अरिजीत सिंह की आवाज़ में कर सकता है तो ऋत्विज की आवाज़ में भी कर सकता है, उसको तो फ्रीक्वेंसी चाहिए। हाँ, एयरटेले चालू કર્યું છે। હા, સો ગવર્મેન્ટ ઇઝ ઓલ્સો સ્ટાર્ટિંગ સમ ઇનિશિયેટિવ્स આ બધા ઉપર। પેલું પણ गवर्नमेंटे કર્યું છે, गवर्नमेंट ने ये भी किया हुआ है कि प्रमोशनल कॉल्स एंड ट्रांजेक्शनल कॉल्स दोनों अलग अलग कॉलर आईडी से रहेंगे। 140 से जो सीरीज शुरू होगी वो प्रमोशनल कॉल्स की रहेगी। तो एज ए यूज़र यू कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई कि ये जो कॉल आया वो मार्केटिंग वाला कोई है कि जेन्यूइन एचडीएफसी बैंक से आया है। तो ऐसी चीज़ें धीरे धीरे हो रही है, बट स्टिल यू हैव टू बी मोर प्रिकॉशन। देखो, नाउ ये फोर्थ पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐप्स के अंदर स्पेशल ऐप एक्सेस में यूसेज एक्सेस। अब यूसेज एक्सेस मतलब क्या? आप सब लोगों ने ये देखा है, अरे यार मैंने पिछले वीक में इंस्टाग्राम 6 घंटा यूज़ किया, ऐसा खुद का ग्राफ देखा है कभी? कितने लोगों ने यहाँ पे देखा है? हाँ,
ज़्यादा से आपका स्क्रीन टाइम क्या था, बोले 14 आवर, और उसमें से सबसे ज़्यादा स्क्रीन कहाँ पे गई, तो व्हाट्सएप में या यूट्यूब में या मैप्स में। जो मेरे जैसे होते हैं कि जो ट्रैवलिंग ही करते रहते हैं तो बोले मैप्स में, ऐसा देखा है। अब अ मेलेशियस ऐप लॉग योर एक्टिविटी टाइमलाइन, कि आप कब बिजी रहते हैं, और उस टाइम पे मैं आपको ओटीपी भेजूंगा। तो ये भी पता चलता है कि आपको आपका नॉर्मल रूटीन क्या है दिन का। सो दिस इज़ वन मोर सेटिंग। थोड़ा क्विक करते हैं क्योंकि वी आर रनिंग बिहाइंड द टाइम। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, सो आई कैन अंडरस्टैंड। फाइनेंशियल एंड बैंकिंग फ्रॉड प्रिवेंशन। अब इसके अंदर इन ऐप सेटिंग में, जैसे फ़ोनपे, जीपे, पेटीएम, उसके अंदर ऐप लॉक आता है। इट्स अ वेरी बेसिक सेटिंग, सब लोगों को पता होगा, बट अगर फिर भी अपने कन्वीनियंसी के लिए अगर आप ये यूज़ नहीं कर रहे हैं कि मेरे साथ तो क्या होने वाला है, तो कर देना, ऐप लॉक डाल देना एटलीस्ट। सेकेंड, लॉक स्क्रीन के नोटिफिकेशन नॉर्मली ऑफ रहने चाहिए। अब ये स्पेशल केस में अगर आप ऑफ करोगे तो ही होगा, बाय डिफ़ॉल्ट ऑन रहता है। तो अगर आपकी स्क्रीन लॉक पड़ी है फिर भी किसी का ओटीपी आया या कुछ आया तो वो पूरा मैसेज स्क्रीन पे दिखाएगा। नोटिफिकेशन 3 तरीके से दिखाते हैं। एक, पूरा कंटेंट दिखाते हैं। दूसरा, नोटिफिकेशन आया है इतना ही दिखाते हैं, क्या है वो नहीं दिखाते। एंड तीसरा, दिखाते ही नहीं है। तो यू कैन पुट द सेकंड वाला मोड, कि एटलीस्ट आपको पता चले बट क्या नोटिफिकेशन है वो ना पता चले। थर्ड, थर्ड पार्टी ऐप लिंकिंग। अब इसमें नॉर्मली हमारी मतलब पता है, एज एन इंडियन ऐसी एक हमारा नेचर है कि हमें इंतजारी बहुत होती है चीज़ों की। ये क्या है, चलो ना देखते हैं। अब ऐसे फ़ोन में जो इसकी सारी बैंकिंग की एप्स है, जी पे या फ़ोन पे या पेटीएम, उसके अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट कलेक्ट रिक्वेस्ट आती है। अभी किसी ने बोला ना कि सेंड के बदले रिसीव, रिसीव के बदले सेंड, वो वाला जो मैकेनिज्म होता है। अब ऐसी कलेक्ट की रिक्वेस्ट पे आपको ध्यान ही नहीं देना है। अब ये हुआ अवेयरनेस। आप सेटिंग से क्या कर सकते हो, थर्ड पार्टी ऐप लिंकिंग में जाके अननोन ऐप से कलेक्ट की रिक्वेस्ट बंद कर दो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, कभी कोई दुकान वाले को आपको पैसे मांगने होंगे, वो नहीं मैं भेज पाएगा, ठीक है नहीं भेज पाएगा तो फ़ोन पे दे देना, उसको रोकड़े जाके दे देना। बट अननोन ऐप से, अननोन यूपीआई आईडी से कलेक्ट की रिक्वेस्ट बंद कर दो, ताकि आपके मोबाइल फ़ोन में जो कॉन्टेक्ट सेव हो, आपकी जो नॉन यूपीआई आईडी हो, कि जिस पे आपने पहले ट्रांजेक्शन करे हुए हैं उसको नॉन कैटेगरी में डालते हैं, उन्हीं से सिर्फ ट्रांजेक्शन हो पाए। सेकेंड, रिव्यू यूपीआई मैंडेट रेगुलरली। गूगल पे के अंदर यूपीआई मैंडेट का भी एक ऑप्शन आता है, जहाँ पे आपने अपने जो बिलर्स के नाम से भी जाना जाता है कि कितने वो लाइट बिल या ये वो कितने मैंडेट आपने रजिस्टर करे हुए हैं। कुछ लोगों ने तो ऑटो पे भी डाला हुआ होता है फैसिलिटी के लिए, कि जब बिल जनरेट होगा ऑटोमेटिक पे हो जाएगा। तो इसको आपको एटलीस्ट मंथली रिव्यू करना चाहिए कि कोई गलती से अननोन सोर्स तो ऐड नहीं हो गया इस पे। थर्ड, अनइंस्टॉल ऐप दैट आस्क फॉर यूपीआई एक्सेस विदाउट जेन्युइन पर्पस। अब यूपीआई एक्सेस की भी परमिशन आती है। तो अगर आप कोई ऐसी ऐप डाउनलोड कर रहे हो, जैसे मैंने बोला साईं बाबा को कॉन्टेक्ट का क्या काम, उस तरीके से कोई ऐसी ऐप आई कि जिनको यूपीआई एक्सेस चाहिए, वो आपको रिस्ट्रिक्ट करना है। यूज गूगल पेज इन ऐप ऑटो पे सेक्शन टू मैनेज एंड रिवोक रिकरिंग डेबिट। ऑटो पे करके एक सेटिंग आता है जिसमें रिकरिंग डेबिट्स सारे आपके मैनेज होते हैं। वो आपको रेगुलरली चेक करते रहना है कि उसके अंदर कौन से मैंडेट रजिस्टर हुए हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है डिवाइस बाइंडिंग। अब डिवाइस बाइंडिंग मतलब क्या, तो आपने जब भी सबसे पहली बार कोई भी फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, कोई भी पेमेंट ऐप डाउनलोड करी, तब आप में से ऑटोमेटिकली एक मैसेज सेंड हुआ था, याद है, ऑटो सेंड हुआ था। आपको बोला गया था कि आपका बैंक में रजिस्टर सिम कौन सा है, 1 और 2, और आपने बोला कि 2, तो 2 के सिम कार्ड में से कुछ ऐसे लंबा 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 लिखा हुआ है कि मैसेज कोई जगह पे सेंड हो गया। और वो ऑटोमेटिक सेंड होने के बाद थोड़े टाइम के बाद आपका वेरिफिकेशन हो गया कि ठीक है अब आपका बैंक अकाउंट लिंक हो गया। अब ये जो प्रोसेस हुई है ना,
उसमें इन लोगों ने इतना सिक्योरिटी रखा है कि वो आपके डिवाइस को बाइंड करते हैं। मतलब बैंक्स हैव इंफॉर्मेशन कि आपका ये नंबर का बैंक अकाउंट इस नंबर की यूपीआई आईडी में इस पर्टिकुलर फ़ोन में चल रहा है। अब अगर हैकर ने कुछ किया हुआ है तो ये बाइंडिंग निकल जाएगा। मान लो मैंने सर का यूपीआई ऐप मेरे में इंस्टॉल कर लिया है, और एसएमएस, कोई एसएमएस लेने के तो कितने तरीके हमने सीख लिए, राइट। तो एसएमएस मैंने लेके सिम अनलॉक था तो वो हो गया, या एसएमएस रीड की परमिशन से मिल गया, इन्होंने खुद ने दे दिया, मैंने इंस्टॉल कर दिया है। अब सर को कैसे पता चलेगा? जैसे अभी मैं आपको क्वेश्चन पूछूं, एज ऑन टुडे 7:17 को कितने लोगों का यूपीआई ऐप दूसरे जगह पे लॉगिन है, कैसे पता करोगे? डिवाइस बाइंडिंग से। डिवाइस बाइंडिंग कैसे चेक करोगे? ऐप में जाओ, ऐप में बैंक अकाउंट में जाओ, आराम से, कोई बात नहीं, उसमें बैंक अकाउंट पे क्लिक करोगे, और अगर बैंक अकाउंट सही तरीके से खुल गया दैट मीन्स एवरीथिंग इज ओके। अगर बैंक अकाउंट आपने 1 2 3 कितने भी बैंक अकाउंट ऐड किए रख सकते हैं, उसमें से क्लिक किया और अगर एरर आई कि डिवाइस बाइंडिंग फेल्ड, सम अननोन एरर, तो समझना कि आपका जी पे और कहीं पे चल रहा है, अभी आप में से निकल गया है। नाउ वील बी डिस्कसिंग अबाउट सोशल मीडिया एप्स। इसके लिए मेरे पास एक छोटा सा वीडियो है आपको दिखाने के लिए। स्पीड बढ़ा दूं थोड़ी, 10 मिनट का है। नेक्स्ट वीडियो जो कि है सोशल मीडिया सिक्योरिटी। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि आप पेमेंट को कैसे सिक्योर कर सकते हैं, और हमने शौर्य का एग्जांपल भी देखा कि कैसे वो हड़बड़ी में आकर 45,000 रुपीस का ऑर्डर। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैक कैसे हो जाते हैं। ये सब कुछ हम यहाँ पर देखने वाले हैं। चलिए पहले इस कोर्स का जो टॉपिक्स है हम लोग वो देख लेते हैं। तो हम लोग देखने वाले हैं असल जिंदगी में सोशल मीडिया पे आपको क्या-क्या थ्रेड्स मिल सकते हैं, आपको एक थ्रेड को आइडेंटिफाई कैसे करना है। इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि आप किस तरीके का पासवर्ड रखें, क्योंकि बहुत बार ऐसे लोग पासवर्ड रख देते हैं ABC 1 2 3, ये कोई भी गेस कर सकता है, और ये अगर कोई अटैक करना चाहे तो ब्रूट फोर्स अटैक के थ्रू ये पासवर्ड आपका बिल्कुल आराम से कोई गेस कर पाएगा। इसलिए आपको बहुत ही अच्छा पासवर्ड रखना चाहिए, और वो कैसे रखना चाहिए वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। इसके अलावा सोशल मीडिया आपको कैसे बिल्कुल सिक्योरली यूज करें। चलिए हम लोग अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आपको अगर ऋतु याद हो, जिसको हमने इंट्रोडक्शन के उदाहरण में देखा था, ऋतु के साथ आगे क्या हुआ? ऋतु का सोशल मीडिया अकाउंट, ऋतु का इंस्टाग्राम हैक हो गया। कैसे? एक हैकर ने बेवकूफ बनाया ऋतु को। ऋतु को लगा ये असली इंस्टाग्राम है और उसने लॉगिन कर दिया, ईमेल आईडी और पासवर्ड अपना डाल दिया, लेकिन वो असली इंस्टाग्राम था नहीं। बिल्कुल इसी तरीके से जितने भी अटैक्स सोशल मीडिया पे होते हैं वो किए जाते हैं। सोशल मीडिया अटैक्स इस तरीके से क्यों होते हैं? बिकॉज फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इनकी सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज करना मुश्किल है। आम लोग ये नहीं कर सकते, या फिर जो भी बहुत कम स्किल वाले हैकर होते हैं वो लोग ये काम नहीं कर सकते। और अगर उनको ऐसा कोई बग या फिर वल्नरेबिलिटी मिलता भी है तो वो लोग इस चीज को रिपोर्ट करते हैं, और बग बाउंटी प्रोग्राम जिसमें आप बहुत अच्छा अमाउंट मिलता है, जैसे कि $5,000 तक का अमाउंट मिलता है, अगर कोई हैकर है तो वो इस $5,000 के लिए क्यों नहीं जाना चाहेगा? वो क्यों चाहेगा कि किसी एक इंसान का वो इंस्टाग्राम, फेसबुक हैक करे? तो अगर हैकर्स को ये काम आसानी से करना है तो आपको बेवकूफ बनाना पड़ेगा। अब हम लोग बात करते हैं जैक के बारे में। जैक एक फिटनेस फ्रीक है, इसे मसल्स बनाना बहुत अच्छा लगता है, और वो जो अपना इंस्टाग्राम है उस पर बहुत सारे फॉलोअर्स गेन करना चाहता है, अपनी फोटोज को डालता है, लेकिन इंस्टाग्राम पे उसे इतना अच्छा रिस्पांस मिला नहीं। उसके फोटोज पे बहुत कम लाइक्स आते थे, उसके फॉलोअर्स बहुत कम थे। तो जैक ने सोचा तो
एक दिन जैक के पास एक लिंक आया, इसमें लिखा था कि आप इस वेबसाइट का यूज करके अपने फॉलोअर्स ऑटोमेटिकली बढ़ा सकते हैं। जैक ने सोचा, अच्छा ये तो बहुत सही बात है, चलिए मैं अपना फॉलोअर्स बढ़ा लेता हूँ। तो जैक ने उस लिंक को खोला और वहां पर अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल दिया। फॉलोअर्स तो बढ़े नहीं, लेकिन जैक का अकाउंट हैक हो गया, बिल्कुल ऋतु की तरह। जैक को लगा कि मेरे फॉलोअर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, 1000-2000 बढ़ जाएंगे, 10,000 बढ़ सकते हैं, लेकिन ये कभी हुआ नहीं। ना ऐसा कोई सर्विस एग्जिस्ट करता है जो आपके फॉलोअर्स को एक बार में इतना ज्यादा बढ़ा दे। लेकिन ऐसे फेक एप्स, ऐसे फेक वेबसाइट्स आपको बड़े बड़े मिल जाएंगे इंटरनेट की। आपको इन सारे ऐप से बिल्कुल बच के रहना है। इन सारे ऐप्स को आप ना इंस्टॉल करें, क्योंकि अगर आप सिर्फ इंस्टॉल भी करते हैं तो हो सकता है इसके अंदर एक वायरस हो जो आपका कीमती डेटा, जो आपका हैकर्स तक पहुंचा दे। और आप ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते, आपके साथ ऐसा कुछ भी हो। तो आप ऐसे ऐप्स ना इंस्टॉल करें, ना ऐसी वेबसाइट्स को आप यूज करें। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं कि आप अपने पासवर्ड्स को कैसे मैनेज कर सकते हैं, आप पासवर्ड सेव कैसे रख सकते हैं। बहुत बार होता है कि हैकर आपका पासवर्ड ये गेस कर लेता है, बहुत लोग अपना पासवर्ड अपने नाम के ऊपर डाल देते हैं या फिर अपने डेट ऑफ बर्थ के ऊपर डाल देते हैं। वो बहुत इजी हो जाता है कि हैकर के लिए आपका पासवर्ड गेस कर ले। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ मेथड्स बताने वाला हूँ कि आप अपने पासवर्ड को कैसे सेव रख सकते हैं। अगर आपको पासवर्ड रीयूज करना है तो आप बार-बार एंटर मत करो, आप पासवर्ड मैनेजर का यूज करो जो आजकल सारे स्टैंडर्ड ब्राउज़र्स में इनबिल्ट आते हैं। ये पासवर्ड मैनेजर बिल्कुल सेफ होते हैं और ये आपको सेम पासवर्ड दो जगह पर डालने भी नहीं देते हैं बहुत सारे केसेस। तो आपको हर बार हर वेबसाइट, हर प्लेटफॉर्म के अलग-अलग पासवर्ड यूज करना और सेम पासवर्ड हर वेबसाइट पे यूज करना बहुत बुरी बात है। क्योंकि अगर आपका एक पासवर्ड गेस हो जाता है, हो सकता है उसी पासवर्ड को यूज करके आपके बाकी सारे वेबसाइट्स के अकाउंट भी हैक हो जाए। इसलिए आपको हर वेबसाइट पे पासवर्ड अलग रखना चाहिए। इसके अलावा आपको टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज करना चाहिए। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या होता है? मान लीजिए कि अगर किसी हैकर को आपका पासवर्ड पता नहीं चले, तो वो अगर आपका फोन नंबर और पासवर्ड डाल करके हैक करना चाहेगा आपका आईडी, तो वो हैक नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन अपने अकाउंट पर ऑन करके रखते हैं, जो कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और सभी स्टैंडर्ड सोशल मीडिया ऐप्स के ऊपर है, तो आपके पास एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी के बिना आप पासवर्ड जानते हुए भी लॉगिन नहीं कर पाएंगे। इस कारण से हैकर्स इस ओटीपी के एब्सेंस में ये आपका जो अकाउंट है उसको हैक नहीं कर सकते, भले ही उनको पासवर्ड मालूम। इसलिए आप टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इसको आप इनेबल करके रखिए। इसके अलावा आपका जो पासवर्ड है वो कोई आम शब्द नहीं होना चाहिए, जैसे एप्पल नहीं होना चाहिए, एप्पल बॉय कैट डॉग, इस तरीके का अपना पासवर्ड ना डालें। ये बिल्कुल एक कॉमन रूल है सभी तरीके के पासवर्ड्स के लिए कि आप इस तरीके का कुछ भी पासवर्ड नहीं यूज करें। इसके अलावा आप अपना अकाउंट का पासवर्ड टाइम टू टाइम बदलते रहें, क्योंकि हो सकता है कि अगर आप एक पासवर्ड बहुत दिन तक रखें तो हैकर को उतना ही टाइम मिलेगा आपका पासवर्ड गेस करने, और बहुत सारे चांसेस बनते हैं कि लोग पासवर्ड गेस कर लें। इसलिए आप अपना जो पासवर्ड है एक लिमिटेड टाइम पीरियड आप डिजाइन कर लीजिए और उस लिमिटेड टाइम पीरियड के बाद आप अपना पासवर्ड रेगुलरली बदलते रहिए। आप अपने पासवर्ड को पासवर्ड मैनेजर के अंदर ना कि एक टेक्स्ट या फिर वर्ड फाइल या फिर एक पीडीएफ में रखें या फिर उसका फोटो खींच करके कहीं रखें। पासवर्ड को इस तरीके से बिल्कुल नहीं स्टोर करना चाहिए। इसके अलावा आपको अपने अकाउंट का सिक्योरिटी देखना चाहिए, जो वहां पे आपको देख पा रहा होगा कि मेरा अकाउंट कहां पर किन डिवाइसेस से लॉगिन हुआ था, ये मुझे यहाँ पर देख सकता है। और अगर मुझे कोई भी ऐसा डिवाइस दिखता है या फिर लोकेशन दिखता है जहां से मैंने एक्सेस नहीं किया था अपना डिवाइस, तो मैं अपना पहले पासवर्ड चेंज करूंगा, अकाउंट का एक्सेस इन सभी जगह से हटाऊंगा और टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को ऑन करूंगा, अगर ये पहले से ऑन ना हो। इसके अलावा जो मैंने पहले बताया, आप अपना पासवर्ड बार-बार एक ही पासवर्ड अलग-अलग वेबसाइट पे रीयूज मत करिए। जो रीजन भी मैंने बताया, अगर आपको कोई पासवर्ड एक बार गेस कर लेता है तो हो सकता है सभी वेबसाइट पे आपका पासवर्ड ट्राई करे।
पासवर्ड है वो एक बिल्कुल कॉम्प्लेक्स फ्रेज यूज करें, जैसे कि टी आर हैश क्वेश्चन मार्क, इस टाइप का एक लंबा पासवर्ड कम से कम 8 डिजिट का, जिसमें कि अल्फाबेट्स हो, दोनों कैपिटल भी और स्मॉल भी। इसके अलावा नंबर्स हो, नंबर्स के अलावा सिंबल्स होने चाहिए, जो अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर जो हम बोलते हैं। ये सब कुछ आपके पासवर्ड में बिल्कुल रैंडमली होना चाहिए कि कोई आपका पासवर्ड गेस नहीं कर ले, और ये मिनिमम 8 डिजिट का होना चाहिए। आप जितना बड़ा रखें उतना बेहतर होगा। इसके अलावा आप किसी भी ऐसे वेबसाइट पर अपना पासवर्ड ना डालें जो एचटीटीपी हो, या फिर जहां पर आपको कोई भरोसा नहीं, या फिर जैसे हमने ऋतु के केस में देखा, या फिर अपने जैन के केस में देखा, ये सारे वेबसाइट ट्रस्टेड नहीं थे, और इन दोनों ने एक ही गलती की कि आप अपना जो पासवर्ड था वो डालते हैं। तो ये चीज आपको बिल्कुल नहीं करना। आप सिक्योर कैसे रह सकते हैं, तो पासवर्ड आपका सिक्योर कैसे रह सकता है, ये चीज मैंने एक्सप्लेन कर दिया। और अगर कोई है, तो ये तो हुई ज्ञान की बात। अब मुद्दे पे आते हैं कि ये करेंगे कैसे। तो हमने ज्ञान में ये सीखा कि अपना पासवर्ड हर एक वेबसाइट पे डिफरेंट होना चाहिए। अब उसमें आप बोलोगे कि अरे तो फिर वो याद कैसे रहेगा, इतने सारे पासवर्ड मैं मैनेज कैसे करूँगा। हम में से कितने लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने एक डायरी बनाई हुई है, तो सबसे पहले तो उसको जला दो। हाँ, कुछ भी, कहीं पर भी, इवन फोटोग्राफ्स भी हो तो भी वो फोटोग्राफ भी डिलीट कर दो, ट्रेस में से भी डिलीट कर दो। तो वो तो पहला काम आज जाने के बाद करना है। हाँ, वो गलत है। हाँ, देखिए मेरे फादर ने भी ऐसा ही किया हुआ था, उनको भी मैंने बोला, आपको भी मैं बताता हूँ कि ये गलत है। क्योंकि ये तो ऐसा हो गया कि आपकी डायरी अगर किसी के हाथ में आ गई तो सारी पोल खुल गई, सारे पासवर्ड्स आ गए, सारी चीज़ें आ गई। यस, नाउ उसका आंसर मैं देता हूँ। दिस अ वेरी वैलिड क्वेश्चन। ज्ञान में जब इन्होंने भाई ने बताया वीडियो में कि अलग अलग पासवर्ड रखो, मेरा तरीका ये है कि मैंने है ना मेरे दिमाग में एक पैटर्न बना ली है। अब आपको हंसी आएगी तो एक्सक्यूज़ मी, बट हाँ मेरे पासवर्ड तो ऐसे ही है कि कोई गेस ना कर पाए, फिर भी हर एक प्लेटफॉर्म के डिफरेंट। मतलब कोई नया मुझे अकाउंट रजिस्टर करना हो ना तो मेरा तुरंत नया पासवर्ड बन जाता है। मैंने एक प्रीफिक्स सोचा है, काला डब्बा। अब ऐसा तो कौन जज करेगा कि मेरा प्रीफिक्स काला डब्बा हो सकता है। आप कर सकते हो पीला मरी, आप कर सकते हो सेकंड फ्लोर, काला जादू। यस, ऐसा कुछ करो कि जो किसी के दिमाग में भी ना आए कि अरे इसका स्टार्टिंग यहाँ से होगा। मेरे पासवर्ड्स का स्टार्टिंग वहाँ से होता है। फिर जो सिंबल हैं जैसे @ है, हैश है, डॉलर है, उन सारे सिंबल में से मैंने एक फेवरेट सिंबल मेरा डिसाइड कर लिया है। तो पहले मेरा आता है प्रीफिक्स, फिर मेरा आता है सिंबल, फिर हम सब लोगों के कुछ लकी नंबर्स होते हैं, तो मेरा भी एक लकी नंबर है। फिर ऑलवेज मेरा आता है लकी नंबर, फिर अगेन मेरा आता है सिंबल। और फिर मैंने ऐसा सोचा है कि मैं जिस प्लेटफॉर्म पे अकाउंट बनाऊंगा उस प्लेटफॉर्म के पहले 4 कैरेक्टर डाल दूंगा। जैसे अगर इंस्टाग्राम का अकाउंट बना रहा हूँ तो काला डब्बा, सिंबल, नंबर, सिंबल, INST इंस्टाग्राम का। अगर मैं भूल भी गया तो भी पैटर्न तो पता है ना मुझे कि मैं कौन से पैटर्न से मेरे पासवर्ड बना रहा हूँ, वो मुझे याद आ जाएगा वापस। और फॉरगॉट तो एनीवेज दुनिया में हर बार हो ही सकता है। मैंने कितने ऐसे लोग देखे हैं कि जो हर बार लॉगिन करने से पहले फॉरगॉट पासवर्ड करते हैं, तो वो तो आप भी कर ही सकते हो। हाँ, बट पैसे निकल जाए उससे तो अच्छा है कि हाँ, लेंथ काफ़ी, मेरी तो काफ़ी ज़्यादा है। आप अपने पासवर्ड पे मेरे जितना स्ट्रिक्ट नहीं बनना चाहते हो अपने ऊपर, तो थोड़ा सा इजी बनाओ, बट एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाओ कि जिससे वो एक पैटर्न बन जाए। आप समझे? पैटर्न बनने के बाद हर एक प्लेटफॉर्म का पासवर्ड चेंज होता रहेगा और किसी को पता नहीं होगा कि आपका प्रीफिक्स क्या है, काला जादू है कि पीला जादू है। किसी को ये नहीं पता चलेगा आपका नंबर कौन सा है। बस, तो पासवर्ड सिक्योर भी बन गया। इन्होंने जो बोला प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म डिफरेंट भी हो गया, इन्होंने जो बोला लंबा है लंबा भी हो गया, सब हो गया, रिमेंबर भी कर सकेंगे। अब जैसे मैं अचानक से भूल गया कि है मेरे फेसबुक का पासवर्ड क्या था,
अरे भाई पैटर्न तो याद है ना, उसी पैटर्न में ही होगा, मैंने ऐसे ही, मेरी हॉबी है, मैं ऐसे ही बनाता हूँ, तो याद आ जाएगा। हाँ, अब देखो आप जैसा वेरिएशन करना चाहो कर सकते हो, ये मिनिमम मैंने बताया। अब आप चाहो तो एक के बदले दो कैरेक्टर यूज करो, आप चाहो तो एक के बदले दो नंबर यूज करो, उसमें भी पैटर्न बनाओ। हाँ, मैंने एग्जांपल दिया उसमें सेम है, सब सेम है, लास्ट में सिर्फ चेंज होता है। बट वो क्या है वो किसी को नहीं पता ना, भले सेम है, क्या है वो थोड़ी किसी को पता है। आपको पता है मेरा क्या प्रीफिक्स है? ऐसा है कि जो दुनिया में कोई सोच नहीं सकता, इतना एकदम वाहियात तरीके का है, बट जानबूझ के ऐसा रखा है मैंने, ताकि कोई गेस ही ना कर पाए। क्योंकि बाकी की मेरी पब्लिक इन्फॉर्मेशन तो सबके पास है, मेरा गाड़ी का नंबर भी सबके पास है, मोबाइल नंबर, मेरी बर्थ डेट, मेरा घर का नंबर, मेरी वाइफ का नंबर, मेरा खुद का नाम, सरनेम, ये वो सब तो पता है, कोई भी कॉम्बिनेशन गेस करेगा। सर आप हर एक वेब में जो कवर के कुछ डालते हो वो तो अलग अलग डालते हो क्या? सॉरी? हर एक वेब में मान लो किसी में हैश डाला तो दूसरे में किसी में कुछ और डालोगे? नहीं, वो भी फिक्स है मेरा, बट आपको नहीं पता है कि क्या है। हाँ, क्योंकि हाँ, पैटर्न वाइज हो सकता है कि मैं @ यूज़ कर रहा हूँ हर जगह पे, हो सकता है मैं हैश यूज़ कर रहा हूँ, हो सकता है मैं डॉलर यूज़ कर रहा हूँ। ओके। हाँ हाँ, नेवर नेवर, हमें याद रखना अच्छी चीज़ है, 4 बादाम ज़्यादा खा लेनी चाहिए, उसको याद रखने के लिए नहीं बोलना चाहिए। निकल जाएंगे मतलब? हाँ, पासवर्ड लेस सिस्टम्स अभी भी आ चुकी है, जो बाकी सारी चीज़ों से चलती है, ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म से। कोई थंब से चलता है, कोई अपने लैपटॉप पे इधर जो बटन होता है उस पे अपना थंब लगाते हो तो खुलता है, बहुत सारे मैकेनिज्म्स है, बट ऐसे बहुत कम है। अभी भी 90% जगह पे तो पासवर्ड ही चल रहा है, सो वी शुड बी अवेयर। सेकेंड पॉइंट है पब्लिक फ्रेंड लिस्ट फॉलोअर्स। तो ये भी सबको पता है कि हु कैन सी योर फ्रेंड लिस्ट में आपको अपना दिखावा बंद कर देना चाहिए। इस सेटिंग का मतलब ये है, हमको ज़रा भी ऐसी दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि हमें कितने ज़्यादा लोग फॉलो कर रहे हैं, या कौन सी बड़ी हस्ती फॉलो कर रही है, या हमारे कितने फॉलोअर्स है, क्या है। जितनी चीज़ें लिमिटेड रहेगी उतना फ्रॉडस्टर्स को पता नहीं चलेगा। इसका हमारी टेक्निकल लैंग्वेज में मीनिंग, एक नाम है, उसको बोलते हैं सोशल इंजीनियरिंग अटैक। सोशल इंजीनियरिंग में मैं ये करता हूँ कि जैसे मुझे इनके साथ कुछ बुरा करना है तो मैं इनका सारा प्रोफाइलिंग करूँगा, ये इनके ऐप में फ़ोन में कुछ ऐसा इंस्टॉल करवाऊँगा जिससे ये कब बिज़ी रहते वो मुझे पता चले, फिर इनमें कौन से फ्रेंड हैं, कौन से फॉलोअर्स है, कॉमन फ्रेंड है, वो सब पता करूँगा। अब ये जितना क्लोज रखेंगे चीज़ें उतना मुझे कम पता चलेगा। एंड ये बहुत ही खास चीज़ जो हमने दिव्य भास्कर का फ़ोटो देखा था सेशन की स्टार्टिंग में, डिजिटल अरेस्ट। अब मैं फिर से क्वेश्चन पूछता हूँ जहाँ से हमने ये रामायण शुरू करी थी कि डिजिटल अरेस्ट होता कैसे है। सबसे पहले कॉल आता है, राइट? कहाँ आता है ये कॉल? व्हाट्सएप पे। अब ये कॉल कौन से नंबर से आता है? ये नंबर स्टोर होता है आप में? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि स्टोर होता तो थोड़ी कोई फ्रॉड करता, अननोन कॉलर ही होते। आपके व्हाट्सएप में एक सेटिंग है कॉल फ्रॉम अननोन नंबर, तो उसमें आपको 3 डॉट में जाना है, प्राइवेसी में जाना है, और वहाँ पे साइलेंस अननोन कॉलर्स कर देना है। अगर आप अननोन कॉलर को साइलेंट कर दोगे आएगा ही नहीं कॉल। अब आप सामने जाके किसी को बोलोगे कि भाई मेरे साथ कर, फ्रॉड कर, फिर भी वो नहीं कर पाएगा क्योंकि कॉल ही नहीं आएगा, बात ही खत्म हो गई। तो डिजिटल अरेस्ट जहाँ से शुरू होता है वही हमने दबा दिया, राइट? As we are towards the ending of this session, I'll quickly finish in next 2-3 minutes. There are some other hacking techniques. First is call forwarding setting. Second is SMS forwarding setting. कॉल फॉरवर्डिंग एंड SMS फॉरवर्डिंग अगर आपका ऑन है कि नहीं वो आपको चेक करना चाहिए। अगर ऑन है तो आपको जितने भी कॉल आते हैं या तो जितने भी मैसेज आते हैं वो आपको आने के साथ साथ दूसरे नंबर पे भी जाएंगे।
तीसरा है यूएसएसडी कोड ब्लॉकिंग। मैंने आपको जो राजकोट वाला एग्जाम्पल दिया था उसमें हैकर क्या कर रहा था, एक गेम इंस्टॉल करवाई उसने और यूएसएसडी कोड रन करके सिम डिटेल एंड आईएमईआई डिटेल ले रहा था। यूएसएसडी मतलब स्टार हैज 06 हैज, उस तरीके के कोड। वो कोड अगर आप ब्लॉक कर दोगे तो ऐसे कोड अननोन पर्सन भी रन नहीं कर पाएगा। हमें तो वैसे भी वो रन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ही बताओ, आपने अपनी लाइफ टाइम में कितनी बार ऐसे कोड रन किए हैं? हार्डली कभी ज़रूरत पड़ी होगी, किसी ने कुछ बोला होगा तो, बाकी तो हम क्यूरियोसिटी के अलावा नहीं करते, तो ब्लॉक कर दो उसको। एंड थर्ड फोर्थ, क्लिपबोर्ड एक्सेस बाय ऐप। आज के सारे फ़ोन में क्लिपबोर्ड एक्सेस आते हैं, मतलब फ़ोन हमारा ये याद रखता है कि हमने सिर्फ लास्ट क्या कॉपी किया था वो नहीं, पिछला 10 टाइम्स डिफरेंट डिफरेंट कौन सी चीज़ें कॉपी करी थी वो हमारे क्लिपबोर्ड पे रहती है। अब अगर कोई ऐप को इस क्लिपबोर्ड का एक्सेस मिल गया तो आपने जो भी, हम कॉपी जनरली क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो यहाँ से वहाँ पेस्ट करनी होती है, हाँ वो फॉरवर्ड करने वाले व्हाट्सएप मैसेज छोड़ दो, उसके अलावा मैं बात कर रहा हूँ, तो वो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन का एक्सेस किसी को ना मिले अगर आपका ये सेटिंग बंद है तो। सो दीज आर सम अदर हैकिंग टेक्निक हाउ यू कैन बी सेफ। So we are towards ending of our session and it's time for conclusion and takeaway. मैं सुनना चाहता हूँ आपसे ही, ताकि मुझे पता चले कि मैंने कितना इफ़ेक्टिवली ये सेशन डिलीवर किया, कि आपको क्या लगता है कि ये पूरा सेशन क्या क्या टेक अवे है। एनी? हाँ जी, यस यस, रिसोर्सेज आर देयर, यस। एटलीस्ट आपको ये पता चला होगा कि सिर्फ ज्ञान सुनने के बदले कुछ सेटिंग भी सही रखने चाहिए। ये आज के सेशन का मोटो था कि सब लोगों को एक डायरेक्शन मिले सोचने के लिए कि हाँ यार ऐसे भी सोच सकते हैं। यस, माइक्रोफोन एक्सेस की वजह से अभी सेशन से पहले मैम से डिस्कस हो रहा था, तो जैसे मैंने आगे पॉइंट में बताया कि आपका परमिशन मैनेजर में आप जाओगे, परमिशन मैनेजर में एसएमएस की परमिशन कितनी ऐप को है, लोकेशन की परमिशन कितनी ऐप को है, वैसे माइक्रोफोन की परमिशन आएगी। माइक्रोफोन की परमिशन चेक कीजिएगा। ऐसी कोई ऐप है क्या कि जिसको लॉजिकली ही ज़रूरत नहीं है फिर भी वो माइक्रोफोन एक्सेस कर रही है, तो वो आपके सारे कीवर्ड्स एक्सेस कर रही है। और फिर सोशल मीडिया में अब उसको पता चल गया आप पूरे दिन क्या बोलते हो, तो आप जो बोलते हो वही चीज़ें दिखाएगी। आप शेयर मार्केट के बारे में ज़्यादा बात कर रहे होगे तो शेयर मार्केट की एड्स आ जाएंगी सिमिलरली। यस, जनरेटर आर गुड। मैनेजर में आप कौन सी यूज़ कर रहे हो उसके ऊपर है। इसी ऑथेंटिसिटी इज़ अगेन क्वेश्चन। तो मैं तो आइडियली यूज़ नहीं करता, हालांकि मुझे पता है कि कौन सी ऑथेंटिक ऐप है, क्योंकि मैंने मेरा पासवर्ड का सिस्टम ही ऐसा बना दिया है कि अब मुझे वो करने की ज़रूरत नहीं है। बट जो लोग खुद से पासवर्ड, हार्ड पासवर्ड बना नहीं सकते, उनको पासवर्ड जनरेटर यूज़ करना चाहिए। बट उसमें दिक्कत क्या आएगी पता है, वो आप याद नहीं रख पाओगे, क्योंकि वो तो एकदम वियर्ड, मतलब जिसका कोई मीनिंग ही नहीं निकलता है वैसा कुछ बना के देते हैं, तो वो तो कहीं पे लिखना ही पड़ेगा। अब हमारी धर्म में लिखना तो मना है, पासवर्ड लिखना, तो इसलिए नहीं करना चाहिए। बेटर है कि आप खुद से कुछ पैटर्न बना के करो। रिमेंबर पासवर्ड जो आता है वो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए प्लीज़। हाँ जी, नहीं, मतलब नॉर्मली कोई सजेस्ट तो नहीं करता, लोग आपको आपके पासवर्ड स्ट्रॉन्ग है कि वीक वो बताते हैं, ग्रीन और रेड और येलो में। हाँ तो होता है, नहीं बट वो यूज़ मत करो। नो 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 नो। यस, यस, टू मी ओनली।
My number is there in the first slide of this presentation, and I'll be available outside this hall after this presentation. तो किसी को कुछ अगर बात करनी है तो उल्लू बनाने के लिए ये आइडिया बहुत अच्छा है. ये कैसा हुआ पता है? अभी रेड 2 कितने लोगों ने देखी हुई है? एनीवन? तो रेड 2 में कितने ट्विस्ट आते हैं, कौन किसके साथ मिला हुआ है किसी को लास्ट तक पता नहीं चलता. ये वैसा हो गया कि सर ने जो डायरी बनाई पूरी डायरी मिल गई बट पूरी गलत निकली. दिस इज अ गुड आइडिया. इट्स देयर ऑन द फर्स्ट. सर दूसरा एक क्यूरियोसिटी क्वेश्चन है. ये हर्ड दैट कि हम जो भी बात करते हैं गूगल के पास पूरा रिकॉर्डिंग होता है. इज इट अ ट्रू थिंग? मतलब हम जो भी ये हमारा जो मोबाइल ऑपरेटर है उसके पास तो होगा ही क्योंकि वो तो कई केसेस में है. लेकिन इवन गूगल थ्रू हिज ओएस रिकॉर्ड एवरीथिंग एंड हियर द प्रूफ एंड वो तब तक तो फोन साइलेंट पड़ा है, आप फोन बात कर रहे हैं दो लोग और वो रिकॉर्ड कर लेता है. सो गूगल की बेसिकली प्राइवेसी पॉलिसी ये कहती है, अगर आप पढ़ने जाओगे तो, कि वो ये डेटा का यूज़ नहीं करते, बट हाँ वो कैप्चर कर रहे हैं. उसका मैं आपको एक प्रूफ दूं कि गूगल और एप्पल दोनों, कि आपका फ़ोन पड़ा है और आप बोलोगे है गूगल तो वो खुल जाएगा, या बोलोगे है सीरी तो सीरी बैन आ जाएंगे. तो मतलब अगर वो सुन रही नहीं रहा होता गूगल तो उसको कैसे पता चला कि आपने है गूगल बोला? दैट मीन्स इट इज़ लिसनिंग. देर आर वेज टू स्टॉप दैट. उससे आपकी फंक्शनलिटी बंद हो जाएगी, आप नहीं उसको यूज़ कर पाओगे. बट अगेन हाँ वो बाय डिफ़ॉल्ट मैनर में करता है. एवरीथिंग हाँ एवरीथिंग. उसका एक रेडियस होता है, उसके अंदर वो सुन सकता है. आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो ट्रू फॉर स्मार्ट टीवी. और काफ़ी लोग जब ऐसे वीडियोस वगैरह बनाते हैं तो वो बोलते हैं कि अपना जो आपने बेडरूम में या हॉल में जो टीवी रखा है उसका कैमरा बंद कर दो अगर उसमें है तो, या जब आप यूज़ नहीं कर रहे हो तो टीवी को या तो ये अपना क्या आता है एलेक्सा को बंद रखो, स्विच ऑफ करो, उसको चालू मत रखो, क्योंकि अगर चालू रखोगे तो सुनेगा, कैमरा है तो देखेगा. बहुत सारे यूजफुल ऐप्स होते हैं वो कुछ अननेसेसरी परमिशन मांगते हैं. वो ऐप चाहिए लेकिन वो परमिशन के बिना उसको नो परमिशन ऑन दिस तो वो चलेगा नहीं. और उसका कोई इलाज है? देखो हमारे ऋषि मुनि है ना, वो 2 जोड़ी कपड़ों में फल खा के ज़िंदगी बिता रहे थे. हमें उसी थिंकिंग लानी पड़ेगी अगर हमें बचना है तो, वरना ऐप यूज़ कर लो, कौन मना कर रहा है. देन यू विल बी इन दैट कैटेगरी कि ये मेरे साथ कहाँ कुछ होने वाला है, फिर होगा तो देख लेंगे. बट अदरवाइज टेक्निकली देर इज नो ऑप्शन. सर जो इनबोर्न एप्स आती है इसमें तो कोई जोखिम नहीं है? देख जोखिम वैसे नहीं है, बट नॉर्मली जब आप कोई नया फ़ोन लेते हो तो उसके जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग होते हैं ना वो सिक्योर नहीं होते. जैसे मैंने आज प्रेजेंटेशन में जितनी सारी चीज़ें बताई उसमें एक्सेसिबिलिटी के सेटिंग मैंने बताए, परमिशन के बताए, तो सर्विसेज के बताए, वो सारे ओपन ही होते हैं. तो बेटर कि यू वंस यू क्रॉस चेक द सेटिंग्स. Is call recording considered fraud or not? मैम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से मैम कैन So of course, you cannot record any recordings without the consent of others. So it is not used. So basically you cannot access any data of Any anyone, data without and recording is also considered as a data. No, means many companies are now providing call recordings as an official app. So just asking for it. नहीं वो कंसेंट लेंगे. They have must have. जैसे अभी परसों का ही मेरा एक्सपीरियंस है कि ये माइक्रोसॉफ्ट की एक लाइसेंस की एक्टिवेट करनी थी, तो माइक्रोसॉफ्ट के सपोर्ट सेंटर में कॉल किया तो, और किसी का सपोर्ट सेंटर ऐसा नहीं करता, माइक्रोसॉफ्ट में मैंने ऐसा देखा कि उन्होंने बोला कि आपका कॉल गुणवत्ता के लिए रिकॉर्ड किया जाएगा, क्या आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं? तो 1 दबाए वरना 2. तो मैंने 2 दबाया तो उन्होंने बोला
आपका कॉल रिकॉर्ड किए बिना आप हमारे सलाहकार से बात करेंगे. सो दे हैव गिवन दिस चॉइस टू अस. इफ वी परमिट देन इट्स ओके. विदाउट अवर कंसेंट नो वन कैन एक्सेस अवर डेटा आइडियली. फोन में No, ऐसा कुछ है? mostly all such calls which are being dialed to banks or any common service providers, so they don't give option. वो सीधा वो ऐसे लिखते हैं. These calls are recorded for quality. सो वॉट उन्होंने एक हैक यूज़ किया है कि आपसे पूछा नहीं है, ऐसा माना है कि आप अब आगे बात सुनने के बाद भी कर रहे हो, दैट मीन्स कि यू आर ओके, यू आर अग्रीइंग टू दैट. अगर आप अग्री नहीं है तो फ़ोन काट दो. तो ऐसा हम लगा सकते हैं, ऐसा हम कभी कॉल पे लगा सकते हैं हमारे फोन से ऐसा जवाब दिस कॉल इज बीइंग रिकॉर्डेड. हाँ, तो जो रिकॉर्डिंग की एप्स आती है Recording ना, करते हैं तो वो आता ही है. तो मेरे फोन पे तो सैमसंग की शायद डिफॉल्ट है, जब से फोन आया उसमें मेरे में भी है. It's also the same. हां, बट कैन वी सेंड दिस वॉइस इन द But you cannot use that auto recorded voice as a proof anywhere, वरना आप पे केस हो जाएगा. तुमने कुछ ना कुछ एक किया. नहीं, पर ये दिस कॉल इज बीइंग रिकॉर्डेड ऐसा वॉइस नोट हर कॉल पे हम लगा सकते हैं. हाँ, वो थर्ड पार्टी है, उसको करके लगा सकते अच्छा, थर्ड हो. You have to use the third party call recording है, और उससे हो सकता है. बट रिटर्न कॉल्स आते हैं तो अच्छा है ना, अगर रिकॉर्ड भी हो रहे तो फिर कैसे केस कर सकते हैं? नहीं, रिवर्स की बात. जैसे मान लो हम दोनों ने फ़ोन पे बात करी, मेरे फ़ोन में ऑटो रिकॉर्डिंग है, मैंने नहीं डाला था, सैमसंग ने दिया हुआ है. अब आपसे मेरी जो भी बात हुई वो हो गई. अब मुझे आपसे झगड़ा करना है तो मैं बोलूँगा भाई तेरा रिकॉर्डिंग है, तूने ऐसा बोला था, मुकर मत जाना वरना मैं रिकॉर्डिंग दिखा दूंगा. तो अगर मैं रिकॉर्डिंग दिखाने गया तो मेरे पे केस होगा कि भाई तूने बिना पूछे इसके साथ क्यों डेटा रिकॉर्ड किया. दैट वे आई कैन नॉट यूज, राइट. पुलिस को प्रूफ मांगेगा. Court will ask the proof. Yes. If we are quarreling, we are recording. We have to find some alternative नहीं, તમને એરટેલ ને જીઓ બધા આપે ને સર્વિસ પ્રોવાઇડર તમને રેકોર્ડિંગ પ્રોવાઇડ કરે पुलिस वेरिफिकेशन. सो यू हैव टू रजिस्टर एन FIR. फिर वो प्रोवाइडर को बोलेंगे कि रिकॉर्ड दो, फिर एयरटेल वाला पुलिस को रिकॉर्ड देगा. वो उसका सही मेथड है, रादर देन यू गिव रिकॉर्डिंग डायरेक्टली कि भाई मेरे पास डायरेक्टली है, देख ले. हाँ, मे बी यू कैन टेक दैट. साइन अप करने जाते हैं. But if we are recording, it is document evidence. It is not considered as evidence because every individual's data privacy वो उसका जन्मसिद्ध अधिकार है, ऐसा IT एक्ट में बोला गया है. हाँ, और अब DPDP एक्ट आ गया है, तो डेटा प्राइवेसी एक्ट आ गया है. यस प्लीज. साइन अप करने जाते हैं कोई वेबसाइट पे, then they say you can sign up with your Google ID or directly. वो advisable है. When we sign in the sign up they ask. हाँ, advice. मतलब उसमें वो पासवर्ड भी अपने डलवाते हैं, तो they can't access. बेसिकली जब आप लॉगिन थ्रू या साइन अप थ्रू गूगल करते हो तो आप अदरवाइज फॉर्म भरते, उस फॉर्म में अपना नाम और ईमेल एड्रेस डालते, वो दो चीज़ वो गूगल से फेच कर लेते हैं. दे आर नॉट टेकिंग मच डेटा फ्रॉम गूगल, तो पासवर्ड तो खुद से ही करना पड़ेगा. यस, एनी वन लास्ट क्वेश्चन प्लीज. यस मैम. सर, अभी क्या हो रहा है कि इंस्टाग्राम में कई अकाउंट्स ऐसे होते हैं जो शॉपिंग वाले होते हैं और उनकी वेबसाइट भी रहती है और वो ऐसे ऐसे वीडियोस दिखाते हैं. फिर हम क्या है कि कोई भी चीज़ वो देते नहीं है, पहले तो DM करो, DM में हम ले लेते हैं, शॉपिंग भी कर लेते हैं. जब पेमेंट हो जाता है तो सारा ब्लॉक हो जाता है. मतलब कुछ भी उनका नहीं दिखाई देता, ना वेबसाइट दिखती है, ना उनका हैंडल दिखता है, कुछ नहीं दिखता. तो कोई सोर्स नहीं रहता साइबर क्राइम करने का, मतलब हमें केस करने का. तो उसमें क्या केस करने का सोर्स है 1903. हाँ, 1930. उस पर आप, हाँ उस पर आप कनेक्ट करके केस रजिस्टर कर सकते हो. आपके साथ फ्रॉड हुए हैं उसका प्रूफ भी दे सकते हो. बट इसको वेरीफाई करने का कोई तरीका नहीं है बिफोर परचेस कि ये जेन्यून है कि नहीं. जैसे मैंने बताया कि आप ये सारी चीज़ें देखो कि उसके और प्रेजेंस है कि नहीं है. अगर है और जेन्यून लगे तो ही करो, वरना रहने दो. रिस्की तो है ही. यस यस. हाँ, गो फॉर द COD.
और देखो सबसे लास्ट में, मतलब ऑन अ फनीयर पार्ट, सबसे लास्ट में ऐसी हर एक चीज का आंसर वो ऋषि मुनि वाला ही है। राइट कि हम अटक नहीं पड़े तो चला ले। थैंक यू। जो सर ने बोला कि वही है, सो आई वॉज थिंकिंग कि जो लैंडलाइन वाला एरा था वॉज द परफेक्ट वन। वी वर एंजॉइंग आवर प्राइवेसी एंड एवरीथिंग। अभी कन्वीनियंसी के साथ ही क्या, वी आर हैविंग दैट दिस मच इश्यूज एवरी डे। So for you, ma'am, COD is the best option, even if you are using Amazon as well. So I recommended use COD rather than going for the any online transactions. So that is the safer way. We can always have the prevention. Don't go for the cure, have the prevention at first. So as we come to the close to this enriching session, it is my privilege to deliver the vote of thanks. First and foremost, a heartfelt thank you to our speaker for the enlightening this session. Your real life experience, practical guidance and clarity on cybersecurity threats have certainly empowered all of us. I would also like to extend my gratitude to all our attendees who took the time to be part of this session. Your engagement and curiosity, especially during this throughout the session, truly enriched today's program. A special thanks to AMA team for their continued efforts in curating such meaningful events and ensuring everything runs smoothly. Let's all continue to stay informed, stay alert, and most importantly, stay cyber safe. Thank you. Thank you so much.